It is clear? Now, children, yesterday or a day before yesterday on Monday, we have started a new chapter, that was the life on the earth. In this chapter, we have studied about the different types of how the life has started on the earth. And now I'm again going to repeat some words which are very important of the lesson are. First was flora world, plant kingdom. Second is fauna, animal kingdom. Third word is the relationship between the plant kingdom, animal kingdom, and the human being with their environment is known as ecosystem. The human being who first appeared on the earth surface were called Homo sapiens. These are the important lines of the chapter. And now the again we are I'm going to explain some words. They are biosphere. Biosphere means the living zone, is the zone of the earth surface is known as biosphere, and the biosphere is divided into two kingdoms, namely plant kingdom and the animal kingdom. Plants are known as the big food factories because they prepare their own food with the help of the non-living things like sunlight, air, and water. And human beings are the most important part of the biosphere, as they derive all their basic needs from it. Human beings consume both plant food as well as animal food. It is the only form of life in the biosphere which has altered the environment according to its own needs. It is these lines were very important, and I think I have given you work, classwork, and most of you have done it also. Now, today we will start the plant kingdom. The page number is 41. And for studying the plant kingdom, we can study different vegetation belt of the world. मतलब जब भी हम लोग प्लांट किंगडम को पढ़ेंगे तो हम लोग को दूसरा जो भी वेजिटेशन बेल्ट है दुनिया उनको हम लोग जानेंगे. तो एक बात बिफोर स्टार्टिंग दिस लेसन ये बात समझ लीजिए कि क्लाइमेटिक कंडीशन डिफर. व्हाई द क्लाइमेटिक कंडीशन डिफर फ्रॉम हियर टू देयर. अब इसलिए बिकॉज हर जो है आप लोग लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पढ़े थे. तो लैटिट्यूड जो होता है वो क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ लैटिट्यूड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं पोल्स की तरफ, तो अब उससे क्या होता है कि क्लाइमेट चेंज होने. तो इक्वेटर पर सबसे अधिक गर्मी पड़ती है. तो नेचुरली द कंडीशन आपका वहां पर जहाँ पे ज्यादा गर्मी पड़ेगी वहां पानी ज्यादा पड़ सकता है, और वहां का पेड़ पौधा भी दूसरे तरह का. जहाँ पानी ही नहीं पड़ेगा वहां का पेड़ पौधा छोटा होगा. तो these are the climatic these are known as the climatic condition, children. Now next one is अंकित राज. अच्छा, ये तो लगता है अनुराग कुमार 7A. 7A के अनुराग कुमार जो हैं, 7A के अनुराग कुमार, आपका चैटिंग जो होता है वो थोड़ा सा अपना कंट्रोल करिएगा. I have listened that you do some types of abnormal chatting, so please don't do it. Anurag Kumar, 7A. Now, before joining the class, आपको अपना ये सबसे बड़ी बात जो आपको करना है वो अपना वीडियो कोशिश करिए ऑन रखें और आपका सेक्शन मेंशन होना चाहिए. Now, children, just for studying the plant kingdom, we can study different vegetation belts of the world. Vegetation includes forest. अब vegetation में क्या क्या आता है देखिए. Vegetation includes forest, grasslands, and here are the some words. Vegetation includes forest. यहाँ देखते रहिए अपने बुक को, पेज नंबर 41. Vegetation includes forest, grassland, bushes and shrubs. They vary from place to place because of the variation in climatic condition. Variation in climatic condition जो अभी आप लोग को बताया, अभी हमने आप लोगों को बताया था ना, तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि व्हाट इज द क्लाइमेटिक कंडीशन, कैसे चेंज होता है, हाउ द क्लाइमेटिक कंडीशन चेंजेस. आप देखिए जैसे सपोज करिए यहाँ इस सारे लोग थोड़ा सा इस जो हम डायग्राम अभी बना करके आप लोग को समझा रहे हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा. दिस इज आवर अर्थ.
जस्ट सी चिल्ड्रन, ये हम लोग ये अर्थ हो गई। दीज आर द पोल्स, नॉर्थ पोल and here is the south pole, here is the north pole and south pole, and this is the equator, equator is on 0 डिग्री। और आप लोग लैटिट्यूड जो सबसे बड़ा जो है ये होता है वो इक्वेटर को माना जाता है लैटिट्यूड में। अब बाकी ऊपर के तरफ भी 90 होते हैं, नीचे की तरफ भी 90 होते हैं। ये जो है ये आप लोग को समझ में आया होगा। तो अब इसी से आपको बता रहा है जो आपका हीट जोन आपने क्लास 6 में पढ़ा था, द हीट जोन विच यू हैव स्टडीड इन क्लास 6, उसका रिलेशनशिप इसी से था। आपको याद आना चाहिए हीट जोन, जैसे इक्वेटर के पास वाला जो है सबसे ज्यादा हीट वाला, उसके बाद मॉडरेट, उसके बाद जो है क्लाइमेटिक कंडीशन जो है चेंज हो जाता था, पोल्स की तरफ बहुत ठंड पड़ने लगती थी। तो नाउ अब कहता है कि इसी से क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं या नॉर्थ की तरफ जाएं या साउथ की तरफ जाएं, अब उससे क्या होता है कि ठंडा मतलब क्लाइमेटिक समझिए गर्मी से ठंड होने लगती है। For example, in the equatorial region, where the temperature and rainfall is high throughout the year, trees are tall and dense. Equatorial region किसको कहते हैं? Equatorial region के लिए अब आप समझ लीजिए कि ये एरिया 0 डिग्री, आप यहाँ देखिए 0 डिग्री, यहाँ पर इक्वेटर सन, यहाँ पर सन क्या होता है, सन का एकदम स्ट्रेट पड़ता है इस पे, तो नेचुरली यहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है और टेम्परेचर जो है बहुत हाई रहता है। हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, यहाँ पर वाटर का ये जो होता है कि पानी जैसे पानी भी बहुत ज्यादा, यहाँ पर रेनफॉल भी ज्यादा होता है इस एरिया में, जो रिलेटेड में इस एरिया इक्वेटर के आसपास के एरिया में। तो अब ट्री कैसा होगा, वो टॉल और डेंस होगा। टॉल मतलब लंबा और घना, डेंस मतलब घना होगा। ये बात समझ लीजिए। हाई एंड रेनफॉल, उसके बाद कहता है दिस टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ। अब इस तरह का जो क्लाइमेटिक कंडीशन होता है उससे क्या होता है, प्लांट और एनिमल लाइफ बहुत अच्छी तरह बढ़ते हैं। उसके बाद कहता है on the other hand, in the desert areas where temperature is high and rainfall is less, the plant and animal life is limited। और दूसरी तरफ जहाँ की डेजर्ट एरिया में जहाँ की प्लांट और एनिमल लाइफ कम होता है, मतलब क्यों होता है कम, बिकॉज द रेनफॉल जो है वहाँ कम होता है। तो पानी जब नहीं पड़े तो नेचुरली प्लांट का ग्रोथ जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता है। द वेजिटेशन बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड can be broadly be divided into various groups on the basis of their location and climatic condition। अब कहता है कि ये वेजिटेशन बेल्ट जो है हम लोगों का, वो जो है डिवाइड हो जाता है क्लाइमेटिक कंडीशन और लोकेशन। लोकेशन का मतलब ये हुआ वो किस अल्टीट्यूड पे पड़ता है, दैट इज नोन एज द लोकेशन। अब उसमें क्या क्या है, 3 ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स एंड टेम्परेट। ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, डेजर्ट हो गया एंड टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट हो गया। नाउ चिल्ड्रन इट्स टाइम फॉर ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट। अब देखिए ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट, these forests are found in tropical regions between 23.5 degree north to 23.5 degree south. On the basis of difference in climatic condition and vegetation, these forests can be divided into 2 groups। अब कहता है कि डिफरेंस देखिए, अब इसको समझने के लिए आप ये जो आपका लाइन है, ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंसेज इन क्लाइमेटिक कंडीशन एंड वेजिटेशन। अब यहाँ पे देखिए 0 से 23 डिग्री मान लीजिए, यहाँ पर हम लोग आ गए मान लीजिए 23.5 डिग्री नॉर्थ, फिर 0 से 23.5 डिग्री साउथ की तरफ हम लोग हो गए। अब देख लीजिए उसमें भी देखिए चेंजेज, आप जस्ट वॉच द चिल्ड्रन, इसको देखिएगा, खुद डायग्राम को कोशिश करके बनाइएगा। 0 से 23.5 डिग्री नॉर्थ, 0 से 23.5 डिग्री साउथ की तरफ हम लोग आ गए। अब 0 डिग्री पर जो इसके आसपास का जो एरिया है, इस पे अब सन रेज सामने सीधा पड़ता है। तो आप जैसे जैसे, एक बात तो आप लोगों को पता होगा, यू नो दैट जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, मतलब लैटिट्यूड या इक्वेटर से ऊपर की तरफ नॉर्थ में जाए या इक्वेटर से ऊपर की तरफ साउथ की तरफ जाए, क्या होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होना शुरू हो जाता है। तब इसी से कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रॉप, ये जो है 2 तरह से बटा हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंसेज इन क्लाइमेटिक कंडीशन एंड वेजिटेशन, these forests can be divided into 2 groups। अब पहला कहता है इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। These forests are found on both sides of the equator between, देखिए अब both side of equator, हम लोग तो यहाँ से यहाँ गए हैं इक्वेटर पर 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री। अब कहता है 0 से 10 डिग्री, मान लीजिए 0 से 10 डिग्री नॉर्थ यहाँ हो गया, 0 से 10 डिग्री साउथ यहाँ हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक का जो फॉरेस्ट है
इसके बारे में हम लोग पढ़े। उसके बाद हम लोग यहाँ से यहाँ तक के फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। नाउ अब ध्यान दीजिए, द मेन एरियाज आर जारे बेसिन अफ्रीका, अमेजन बेसिन इन साउथ अमेरिका एंड फ्यू आइलैंड्स इन द साउथ ईस्ट एशिया. These areas receive heavy rainfall throughout the year and the temperature remains very high. These forests remains green throughout the year. The trees are very tall. Main trees found in these areas are ebony, rubber, mahogany, rosewood, etc. अब देखिए, फिर से देखिए, 0 से 10 डिग्री यहाँ इक्वेटर पर आ जाइए. कम ऑन द इक्वेटर, 0 से 10 डिग्री नॉर्थ, 0 से 10 डिग्री साउथ, इक्वेटर पर एकदम. अब इस तरफ इस तरफ अफ्रीका पड़ता है, इस तरफ जो है साउथ अमेरिका, नॉर्थ साउथ अमेरिका पड़ता है. तो अब कहता है अमेजन बेसिन का एरिया इस तरफ पड़ेगा और जैरे बेसिन का एरिया इस तरफ पड़ेगा, रिवर का. तो ये जो एरिया है, ये इक्वेटर बहुत हॉट है. यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, बहुत गर्मी की वजह से यहाँ क्या होता है, हेवी रेनफॉल होता है. तो पेड़ पौधे कैसे होते हैं, एकदम मतलब रेनफॉल साल भर थ्रू आउट द ईयर हेवी रेनफॉल होता है. अब हेवी रेनफॉल की वजह से इट कॉजेस ट्रीज आर वेरी टॉल और रिमेन इज ग्रीन, और हरे रंग के ही वो रहते हैं. रिमेन ग्रीन का मतलब हरे रंग के ही वो रहते हैं ना, इसलिए इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं. और मेन ट्रीज इस एरिया का क्या क्या है, इबोनी, रबर, महोगनी, रोजवुड एटसेट्रा. नाउ अगेन एक बार फिर से सुन लीजिए, these forests are found on the both sides of the equator between 10 degree north and 10 degree south latitude. The main areas are Jared Basin in Africa, Amazon Basin in South America, and few islands in the Southeast Asia. These areas receive heavy rainfall throughout the year and the temperature remains very high. These forests remain green throughout the year. The trees are very tall. Main trees found in these areas are ebony, rubber, mahogany, rosewood, etc. Tropical, now it's time for us to ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. अब यहाँ पे देखिए फिर से अगेन ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को देख लीजिए. अपना जो इंडिया है, हमारा कंट्री, वो भी इसी तरह के क्लाइमेटिक, हमारे कंट्री में भी इसी तरह का, इसलिए इसको थोड़ा जानने के लिए और जानने की कोशिश करिए. देखिए 10 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ से 23.5 डिग्री साउथ. अब हम लोगों का ये एरिया जो है, ये एरिया, ये ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट इधर मिलता है. इज इट क्लियर? अब इसी एरिया पर यहाँ हम लोग का इंडिया भी पड़ता है, और यहीं पर ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इधर जो है साउथ की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको काटता हुआ निकलता है, जो इंडिया को बीचों बीच काटता है. Now, this forest belt receive moderate rainfall and the trees here shed the leaves in the dry season. The trees are of medium height. मतलब बहुत ही, मतलब एवरग्रीन के फॉरेस्ट कैसे थे, बहुत टॉल थे. यहाँ के पेड़ कैसे हैं, मीडियम हाइट के हैं. The main areas where these forests are found are India, China, Eastern Brazil, etc. Common trees in these areas are sal, teak, bamboo, etc. और कॉमन ट्री क्या क्या है, साल है, टीक है, बैम्बो है, etc. अब क्लियर हुआ? Just listen it again. The tropical deciduous forest. These forests are thrive between, thrive मतलब पड़ते हैं, between 10 degree north to 23.5 degree north and 10 degree south to 23.5 degree south latitude. This forest belt receive moderate rainfall and the trees here shed their leaves in the dry season. The trees are of medium height. The main areas where these forests are found are India, China, Eastern Brazil, etc. Common trees in these areas are sal, teak, bamboo, etc. Our next chapter is grassland. So here we are studying the different vegetation belt of the world. First, we have studied about the tropical hardwood forest, which is again divided into the tropical hardwood forests are divided into two parts. First is equatorial or tropical evergreen forest, and second is tropical deciduous forest. The one quality of the tropical equatorial or tropical evergreen forest are these forests remain green throughout the year. The trees are very tall, and the one main feature of the tropical deciduous forest are these forests receive moderate rainfall and the trees here shed their leaves during the ड्राई सीजन. अपने यहाँ पर क्या होता है
कि ट्रीज जो है अपने पत्तों को गिरा देते हैं ड्राई सीजन में। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रासलैंड। ग्रासलैंड्स आर एरियाज where the vegetation is dominated by grasses. What the grassland का मतलब क्या हुआ? जहाँ की vegetation किस तरह का है? Grasses. Dominate क्या कर रहा है? Grasses. Grass like plants and scattering of the tree. As plants मतलब पेड़ कैसे ग्रास होते हैं? प्लांट की तरह छोटे छोटे, और लगता है कि जैसे मतलब पौधों का झुंड जो है उस तरह के ग्रास होते हैं। मतलब बड़े, मतलब ये नहीं समझिए कि ग्रास जैसा इंडिया में छोटा छोटा दिखता है उस तरह का नहीं, कहने का मतलब हुआ ग्रास सॉरी grasslands are found in the areas of scanty rainfall with varying temperature conditions. On the basis of climatic condition, they can be divided into two group. अब ग्रासलैंड को भी देखिए टू ग्रुप में बांट दिया है। अब उसका देखिए फर्स्ट ग्रुप जो है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, जो ट्रॉपिकल जोन में पड़ता है। They are located between the equatorial forest and hot desert in both the, देखिए इक्वेटोरियल फॉरेस्ट और हॉट डेजर्ट के बीच में है, तो नेचुरली इनके यहाँ पानी जो है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के इतना तो नहीं, लेकिन उससे थोड़ा कम पानी पड़ता होगा, बारिश होती होगी। रेनफॉल, दैट इज द rainfall. They are located between the tropical grasslands are located between the equatorial forest and hot deserts in both the hemisphere. Hemisphere मतलब साउथ के तरफ और नॉर्थ के तरफ, that is known as the hemisphere. In both the hemisphere, these grasslands receive about 100 centimeter rainfall. अब देखिए यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर, ये इस यहाँ पर 200 इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में रेनफॉल का कितना होता है? 200 सेंटीमीटर, और इक्वेटर ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में 150 टू 200, और ग्रासलैंड में 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर रेनफॉल भी काफी है ग्रास के लिए, तो ग्रास जनरली ग्रास से थोड़ा बड़ा साइज का होता है। दिस ग्रासलैंड, दिस ग्रासेस ऑफ दिस रीजन, अब ये इक्वेटर के पास है, यहाँ पे देख लीजिए, अफ्रीका में भी इक्वेटर के पास है, तो नेचुरली बारिश ज्यादा हो रही है, तो अब जब पानी ज्यादा पड़ रहा है तो ग्रास कैसा होगा? द ग्रासेस ऑफ दीज रीजन आर वेरी रफ, थिक एंड टॉल। कैसा है? रफ है, मतलब हमेशा बारिश होती रहती है, ठीक मतलब घना है, टॉल भी है। कॉम्पास इन ब्राजील आर द टिपिकल एग्जांपल ऑफ दिस। अब यहाँ पर देखिए ब्राजील है, ब्राजील साउथ अमेरिका में ब्राजील है, यहीं पर जैरे बेसिन के पास है, यहाँ पर सॉरी ये क्या कहते हैं अमेजन बेसिन ब्राजील की तरफ ही इधर से बहती है अमेजन रिवर। नहीं तो द टेम्परेट ग्रासलैंड, these grasslands are located in the temperate zone and in the interior part of the continent. अब कहते हैं ये ग्रासलैंड कहाँ मिलता है? टेम्परेट जोन में मिलता है। कहाँ? इंटीरियर पार्ट मतलब कॉन्टिनेंट के अंदर के तरफ। दिस ग्रासलैंड रिसीव अबाउट 25 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल। अब ये जो है वो 100 सेंटीमीटर, और ये कितना मिल रहा है इसको? 25 to 75 सेंटीमीटर। दे समटाइम्स रिसीव स्नोफॉल ऑल्सो, कहता है कि कभी कभी ये जो है स्नोफॉल भी रिसीव होता है ये एरिया। द ग्रासेस ऑफ दिस रीजन आर शॉर्ट एंड सॉफ्ट। अब कहता है कि इस एरिया के जो ग्रास हैं वो कैसे हैं? शॉर्ट भी हैं और सॉफ्ट भी हैं। इज इट क्लियर? शॉर्ट और सॉफ्ट, तो मतलब ये टॉल है और ये शॉर्ट है। दे आर नोन एज द डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट एरियाज। अब डिफरेंट अभी कहता है कि डिफरेंट एरिया में इनका डिफरेंट नेम रहता है। अब क्या क्या है? प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका, यहाँ देखिए मैप में देखिए नॉर्थ अमेरिका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के भी ऊपर, मतलब इधर ठंड पड़ती है, पोल्स के पास है, पोल्स के पास है, ये देख लीजिए। पंपास साउथ अमेरिका, देखिए ये भी पोल्स के पास, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से भी बहुत नीचे है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहलाता है, एंड साउथ अफ्रीका में देखिए दोनों तरह का मिल गया, ये सबाना भी मिल गया यहाँ पर, सबाना साउथ अफ्रीका में नाम है, और यहाँ पर बेल्ट भी है जो कि थोड़ा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, साउथ अफ्रीका जो है मतलब इधर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को भी टच करा है, उधर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को भी टच करा है, और इधर जो है एक तरह से देख लीजिए कि ये भी देख रहा है, क्या कहते हैं इक्वेटर पर तो वो है ही। तो यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन बिल्कुल ही अलग अलग होता है, ये बताने का इसका मतलब यही हुआ। अब आई एम गोइंग टू रिपीट द ग्रासलैंड वन अगेन, एंड ऑल ऑफ यू प्लीज लिसन इट properly and pay attention in your book also. Grasslands, the grasslands are areas where the vegetation is dominated by grasses, grass like plants and a scattering of trees. Grasslands are found in the areas of scanty rainfall with varying temperature condition. On the basis of climatic condition, they can be divided into two groups.
Number one, tropical grassland. They are located between the equatorial forest and hot deserts in both the hemispheres. These grasslands receive about 100 centimeter rainfall. The grasses of these regions are very rough, thick, and tall. Pampas in Brazil are the typical example of these forests. Next is temperate grassland. These grasslands are located in the temperate zone and in the interior parts of the continent. These grasslands receives about 25 to 75 centimeter rainfall. They sometimes receive snowfall also. The grasses of this region are short and soft. They are known by different names in different areas. For example, prairies, North America, pampas, South America, downs, Australia, and veld, South Africa. Now, desert. Here, before studying the desert, we should know that desert are also of the two kinds. One is hot desert and another is cold desert. Cold desert, hot desert is found in the areas near the equatorial region, or hot desert is found in the areas near the poles. पोल के पास का जो एरिया होता है उधर हम लोग को कोल्ड डेजर्ट मिलता है. तो मतलब जैसे लाइफ दोनों जगह टफ ही होता है. व्हाई द लाइफ इज टफ इन द डेजर्ट? क्योंकि जहां अगर मान लीजिए बहुत हॉट है तो वहां गर्मी के मारे हम परेशान हैं, बहुत कोल्ड है तो वहां ठंड के वजह से परेशान है. तो नेचुरली आप देखिए दोनों जगह का ये आप लोग आगे पढ़ना है, इसलिए थोड़ा सा हम डिस्कस कर देते हैं, आप लोगों को क्लियर करके बताते हैं. अब मान लीजिए सपोज करिए कि यू आर लिविंग इन ए कोल्ड जोन और समटाइम्स यू हैव टू लिव इन द हॉट जोन. तो हॉट जोन में आप देखिए खाने पीने का भी तरीका अलग हो जाता है. हमारे यहाँ हमारे कंट्री जो है यहाँ हम लोग सब तरह का क्लाइमेटिक कंडीशन फील करते हैं. तो आप देखिएगा कि किस तरह से जाड़ा जब पड़ता है तो हम लोग का खाना पीना किस तरह का होता है और जब गर्मी पड़ती है तो किस तरह का होता है. लेकिन अब जस्ट इमेजिन अबाउट द एरियाज जहाँ हमेशा थ्रू आउट गर्मी पड़ रही है या थ्रू आउट ठंड पड़ रही है, तो लाइफ कितना, और ठंड भी कैसा, माइनस टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर कैसा है, अगर एकदम एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम का मतलब ज्यादा गर्मी है तो वो 50 डिग्री प्लस है, जाड़ा है तो वो -50 डिग्री है. तो अब नेचुरली दोनों जगह जो है लाइफ इज वेरी टफ. और उसी तरह से यस 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 चिल्ड्रन, यस आप लोग थोड़ा सा, इसलिए आप लोगों से मैंने डिस्कस कर लिया नॉर्थ और साउथ पोल्स के तरफ. यस आपको भी आइडिया, तो इन क्लास 6 ऑल्सो यू हैव स्टडीड अबाउट द पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑल्सो. तो उसको थोड़ा सा आपको हमेशा ही याद रखने की जरूरत है. जब भी आप पढ़िए, whenever आप you start your studies, आप प्रीवियस चैप्टर से, प्रीवियस क्लास के जो चैप्टर्स आपने पढ़े हुए हैं उससे उसको रिलेट करिए. रिलेट करने से आपके समझ में आ जाएगा चैप्टर और अच्छी तरह से. डेजर्ट, a vast area with less vegetation due to very scanty rainfall is commonly known as a desert. On the basis of difference in temperature, deserts can be categorized into two groups. Namely, first is hot desert. These are mostly located on the western margins of the continents where temperature remains very high throughout the year. Some important hot deserts of the world are the Sahara Desert, the Thar Desert, and the Atacama. Cactus, shrubs, and bushes are the common vegetation of this area. Cold desert. The cold desert are mostly found around the polar regions where temperature remains below freezing point for the major part of the year. The common vegetation is comprised of mosses, lynches, etc. अब देखिए वेजिटेशन भी दूसरे तरह का हो गया. यहाँ पर कैक्टस, श्रब्स एंड बुशेज, और यहाँ पर मॉसेज, लिंचेज, जो बहुत ठंड में इसी तरह आइस के ऊपर दिखने लगते हैं. द मेन एरियाज आर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साइबेरिया एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कनाडा. ये जो है नॉर्थ अमेरिका के तरफ का एक है, और एक जो है इधर रशिया के तरफ, साइबेरियन इज अ रशियन पार्ट. और नेक्स्ट है टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट. ये भी जो है हायर लैटिट्यूड पे ही मिलता है, मतलब पोल्स के तरफ. Another type of vegetation which is common in the continental interior of high latitude. Interior मतलब अंदर के तरफ, interior मतलब अंदर के तरफ, as well as high altitude areas of Asia. मतलब हम लोग के तरफ भी, जैसे वो इस तरह का जो है कश्मीर के तरफ, हम लोग के तरफ कश्मीर के तरफ, और हिमाचल मतलब हिमालय का जो बेल्ट है ऊपर वाला वो सब मिलता है. हिमाचल के शिमला के तरफ, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका,
Throughout, what is the throughout in the desert? Yes, not what throughout in the desert? Rishabh Raj? Rishabh Raj. Oh, summer. So desert, in the hot desert. In the hot desert. What do you want to speak? चैट करके बताइए आप क्या बात बोलना चाहते हैं. What do you want to speak? आप चैट करके बताइए. यस मैम, मत हमको तो समझे ही नहीं. आप थ्रू आउट द ईयर लिखे, फिर लिखे आप हॉट डेजर्ट लिखे. Then what do you want to speak? I am not understanding. आप चैट करके बताइए. Now, high altitude Asia, Europe, North America, South America and New Zealand are known as taiga. इस तरह का जो फॉरेस्ट उधर मिलते हैं उनको किस एरिया में देख लीजिए. एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड न्यूजीलैंड आर नोन एज टाइगा. These are also known as coniferous forest. इसको coniferous forest भी कहते हैं because they mainly have cone bearing trees. अब पेड़ कैसा होता है, लगता है कि कोन की तरह है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर, मतलब ये दिखता हुआ नीचे की तरफ, मतलब कोनिकल शेप का. कोन को तो आप लोग समझ रहे हैं, जैसे कि आपको कैसे होता है बताएं आपको. देखिए कोनिकल शेप ये हुआ. आप लोग डायग्राम पे, कॉपी में जो हम डायग्राम बना रहे हैं इसको ध्यान दीजिए. इस तरह का, दिस इज द कोनिकल शेप. ये कोनिकल शेप होता है. आप दिख रहे हैं, मेरे कॉपी पे दिख रहा है. दिस इज द डायग्राम. ये कोनिकल शेप कहलाता है. कोनिकल शेप, दिस इज नोन एज द कोनिकल शेप. इसीलिए द ट्रीज आर ऑल्सो कोनिकल इन शेप. They are also conical and have very soft wood. They have needle shaped. उनके कैसा होता है, नीडल की तरह, उनका जो सुई की तरह लीव्स होता है. The coniferous forests are more uniform and consist of pure stands of a few species. मतलब अब coniferous forest क्यों हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो है कुछ ऐसा पेड़ पौधा होता है जो वही मिलता है. The main trees are pine, fir, spruce, larch, etc. क्योंकि उतने ठंड में ही होगा. कहने का मतलब यह है कि वो उतना ठंड में ही होगा. नाउ फिर से एक बार देख लीजिए इस एरिया को. अनदर टाइप ऑफ वेजिटेशन विच इज कॉमन इन द कॉन्टिनेंटल इंटीरियर ऑफ हाई लैटिट्यूड्स एज वेल एज हाई अल्टीट्यूड्स एरियाज ऑफ एशिया, यूरोप, North America, South America, and New Zealand are known as taiga. These are also known as coniferous forests because they mainly have cone-bearing trees. The trees are also conical in shape and have very soft wood. They have needle-shaped leaves, and coniferous forests are more uniform and consist of pure stand of a few species. The main trees are pine, fir, spruce, larch, etc. Now, children, I want to listen one. I am giving you one thing जो आप लोग थोड़ा सा हमको सुना दीजिए. यहाँ पे देखिए पेज नंबर 42, पेज नंबर 42 जो हम जिधर देख रहे हैं उधर ही बोलेंगे. यहाँ देखिए. This forest belt receive moderate rainfall and the trees here shed their leaves in the dry season. The trees are of medium height. The main areas where these forests are found are India, China, Eastern Brazil, etc. Common trees in these areas are sal, teak, bamboo, etc. इसको हमको आप लोग अभी सुनाइए, याद करिए. जिनका भी हो जाएगा उनका हम सुनेंगे. जिनका भी हो जाएगा वो जाएंगे और हमको हैंड रेस करेंगे, उनका हम ये हटाएंगे. और वो कोशिश करेंगे कि स्क्रीन पे आके भी बोलेंगे. आई विल लिसन इट. द चिल्ड्रन विल ट्राई टू कम ऑन द स्क्रीन आल्सो. जिनका हो जाएगा वो हैंड रेस करेंगे. ओ ऋषभ राज, क्या आप कहाँ थे क्लास में? क्या आप पूछ रहे हैं मैम व्हाट?
Yes, you have to learn. Aditi Sinha, ये सुन लीजिए. This forest belt, page number 42. This forest belt receive moderate rainfall, and the trees here shed their leaves in the dry season. The trees are of medium height. The main areas where these forests are found are India, China, Eastern Brazil, etc. Common trees in these areas are sal, teak, bamboo, etc. These are the lines which I have repeated. Which I have repeated. जिनका हो जाएगा, जो हमको पढ़ के सुनाना चाहेंगे, वो अपना हैंड रेज करेंगे. This forest belt receive moderate rainfall, and the trees here shed their leaves in the dry season. The trees are of medium height. The main areas where these forests are found are India, China, Eastern Brazil, etc. Common trees in these areas are sal, teak, bamboo, etc. Common trees in these areas are sal, teak, bamboos, etc. In this I want to listen. जिनका भी हो गया हो, हैंड रेस करके हमको सुनाएंगे. जिनका भी हो गया हो, हैंड रेस करके हमको सुनाएंगे. I will listen. Yes, आयुष रतन. चलिए, I have 7B आयुष रतन. बोलिए, I have unmuted you. बोलिए आयुष रतन. The forest belt receives moderate rainfall and the trees shed here the leaves in the dry season. The trees are of the medium height. These types of forests are found in India, China, and Eastern Brazil, etc. Yes, common trees. बोलिए. Common trees in these areas are seal, teak, bamboo, etc. सील नहीं, साल. ऐसे साल उसको बोलते हैं, सील नहीं कहते हैं. ओके, वेरी गुड. थोड़ा सा और याद कर लीजिए. ओके, इट्स वेरी गुड आयुष रतन. नेक्स्ट कोई है और कोई है नेक्स्ट? प्रियांशु कुमारी. ओके, प्रियांशु कुमारी. आपको मैं बोलिए. यस, चलिए बोलिए. Receive moderate rainfall and the tree here shed the leaves in the dry season. The trees are of medium height. The main area where these forests are found are India, China, Eastern Brazil, etc. Common trees in this area are sal, teak, bamboo, etc. ओके, वेरी गुड. प्रियांशु कुमारी के बाद बोलेंगे अदिति सिन्हा. चलिए, अदिति सिन्हा. ओ सॉरी, कुमारी सृष्टि. आप बोलिए. कुमारी सृष्टि. This forest belt receive moderate rainfall and the trees here sheds leaves in the dry season.
The trees are of medium height. The main areas where these forests found are India, China, Eastern Brazil, etc. Common trees in these areas are sal, teak, bamboo, etc. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट में बोलिए. अभी अदिति बोली, भी किसने बोला था? अदिति सिन्हा बोलिए. अदिति सिन्हा. Yes, ma'am. This forest belt receives moderate rainfall, and the trees here shed their leaves in the dry season. The trees are of medium height. The main areas where these forests found are India, China, Eastern Brazil, etc. Common trees in these areas are sal, teak, bamboo, etc. ओके, वेरी गुड अदिति. अब ऋषभ राज नाउ ऋषभ राज 7B बोलिए. ऋषभ राज. This forest belt receives moderate rainfall, and the trees here shed the leaves in dry season. The trees are of medium height. The main areas where these forests are found are India, China, Eastern Brazil, etc. हाँ. Common trees in these areas are sal, teak, bamboo, etc. यस, वेरी गुड. नेक्स्ट वन कौन है? कौन बोलना चाहता है? हु वांट टू स्पीक नाउ? कोई और है तो बोलेंगे अभी. और एनीवन एल्स?